A very good morning and Jai Hind class 12th. Continuing with chapter number 7, that is directing. Yesterday we discussed the definition of directing. That directing is telling people what to do and seeing that they do it to the best of their ability. Okay. डायरेक्टिंग क्या होता है? एक ऐसा फंक्शन है मैनेजमेंट का जो आप द पीपल हु आर वर्किंग अंडर यू टू टेल देम व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम देम. ठीक है, फॉर दैट यू शुड अवेयर देम व्हाट टू डू and to see that whether they are performing it according to the instructions given to them or not. Okay, we have discussed the features of directing, that is direction, as well as the importance of direction. Now comes the most important part, that is elements of directing. My dear students, yesterday I have told you that there are 4 elements of directing, and those 4 elements are communication, supervision, leadership and motivation. We have discussed it yesterday. Communication, supervision, leadership and motivation. Again I am recalling it that amongst the all 5 function of management, directing is the 4th function of management. You can also call it the actuation, right? Directing में क्या होता है? Managers need to guide their subordinates because they wanted to achieve the organizational objective, and without these subordinates effort, their coordination, their cooperation, it is not possible for the manager to accomplish the task. Okay, you can also call directing as actuation and execution function, because here you give a exact shape to your plans. All right, so let us discuss the very first element of directing, that is supervision. See, every manager supervises his subordinates. Like in a classroom, the teacher is there to supervise all the strength, all the students in the classroom. The teacher is supposed to see their performance, right? Likewise in company, the manager oversees their performance to ensure प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस. क्या 2 चीज़ें आप देखते हो मार्केट में जाते हो सामान खरीदने? एक तो देखते हो कि क्या आपको वैरायटी अवेलेबल हो रही है या नहीं हो रही है तो जिसकी क्वालिटी सबसे अच्छी होती है आप वो लेते हो. ठीक है, सो इंश्योर करना मैनेजर को कि प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम ना हो और क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस में भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, effort should not be wasted, and materials or raw material you can say should not be wasted. For that a manager need to keep an eye on the subordinates. Okay, whether they are performing their things according to the instruction given to them, whether the production is not suffering, production suffer नहीं करनी चाहिए, quality of performance. Like suppose you have assigned 4 tasks to 4 people, okay, and what you are expecting that they should give a quality of performance whatever task is being assigned to them. वो उसमें कुछ अच्छा करके दिखाएंगे, तो that is what you want to see, you want to supervise. Also you need to keep a check on whether the employees are must not waste their time, effort as well as material of the company. Okay, now comes the second one, that is motivation. What comes in motivation? Inspiring the subordinates with a zeal to work for the accomplishment of organizational objective. Enthusiasm, zeal को आप कह सकते हो, enthusiasm. इस तरह से इंस्पायर करना सबॉर्डिनेट्स को एक ऐसे एंथुजियाज़म के साथ जिससे उन्हें पता चले कि येस वी ऑल हैव टू वर्क ऑल टुगेदर टुवर्ड अ कॉमन ऑब्जेक्टिव. कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव, हमें उसे पूरा करना है मिलकर. उसके लिए एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टू मोटिवेट, टू इंस्पायर देयर subordinates, right? The manager should motivate the subordinate to work for the achievement of organizational goal. बेटा इस बात को हमें नहीं भूलना है. Underline this sentence that the manager should motivate their subordinates, those who are working under him,
सो दैट दे कैन वर्क फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। हर कंपनी का एक गोल होता है, हमें एक दिन में 200 टीवी मैन्युफैक्चर करने हैं, हमें क्वालिटी चाहिए, राइट। एंड ये गोल वही लोग कर सकते हैं द पीपल हु आर एसोसिएटेड विद इट। उसके लिए वेरियस काइंड ऑफ इंसेंटिव्स एक रिवॉर्ड होता है, ठीक है, चाहे वो फिनेंशियली चाहे नॉन फिनेंशियली दिया जाए। ये यूज़ किया जाता है वर्कर्स को एंथुजियास्टिक बनाने के लिए, राइट। उन्हें पता है अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमें एज अ रिवॉर्ड इंसेंटिव मिलेगा। वो कैश भी हो सकता है और कुछ और भी हो सकता है, ठीक है, मीन्स फिनेंशियल भी हो सकता है, नॉन फाइनेंशियल भी हो सकता है, ये आप पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट एलिमेंट इज लीडरशिप। बाय परफॉर्मिंग दिस फंक्शन मैनेजर गाइड एंड इन्फ्लुएंस द वर्क ऑफ हिज सबऑर्डिनेट। लीडरशिप मीन्स ये नहीं है कि दादागिरी दिखानी कि आप काम नहीं करो निकलो चलो। इट मीन्स द मैनेजर नीड्स टू गाइड एंड इन्फ्लुएंस द वर्क ऑफ हिज सबऑर्डिनेट। आप प्रॉपरली गाइड करोगे उन्हें, वो काम अच्छा करेंगे। लीडरशिप एक ऐसी क्वालिटी होती है मैनेजर के पास जिससे वो अपने सबऑर्डिनेट को एक सही दिशा दिखाते हैं। मैनेजर लीडरशिप के थ्रू, क्योंकि उन्हें गाइड करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, कोऑपरेशन अचीव करने की कोशिश करते हैं सबऑर्डिनेट्स में। आप सबको मिलकर एक साथ गाइड कर रहे हो, इन्फ्लुएंस कर रहे हो, सुपरवाइज कर रहे हो, सो यू विल बेटर गेट टू नो दैट हाउ कम इट इज़ पॉसिबल फॉर द सबऑर्डिनेट्स टू अचीव द कोऑपरेशन। और इस चीज़ से कोऑपरेशन आएगा व्हेन दे आर वेरी मच अवेयर व्हाट दे सपोज टू डू। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन। मैनेजर इशू ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन टू द सबऑर्डिनेट्स। अगर मैनेजर को कोई काम कराना है तो वो ऑर्डर इशू करेगा, इंस्ट्रक्शंस देगा सबऑर्डिनेट को। बट इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजर कि सबऑर्डिनेट को उसके दिए हुए इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर समझ में आ जाएं। फॉर दिस वो इनकरेज करेगा अपने सबऑर्डिनेट्स को कि इफ़ दे हैव एनी डाउट्स सो दे कैन डायरेक्टली कम टू हिम एंड बी इन टच विद हिम इन केस ऑफ एनी डिफ़िकल्टी, सो दैट वो लोग हिचकिचाएँ नहीं। उन लोगों को कभी ये सोचना ना हो कि अगर हम किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो व्हाट वी डू, हम तो अपने मैनेजर के पास जाकर कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। टू वे ट्रैफिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इधर से भी बात हो और उधर से भी बात हो। और मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है रिपोर्ट रिसीव करते रहना परफॉर्मेंस ऑफ सबऑर्डिनेट्स। किस लिए? फॉर द पर्पस ऑफ रिव्यू एंड कंट्रोल। इफ़ द मैनेजर केम टू नो एनी ऑफ द सबऑर्डिनेट इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेल, ही नीड्स टू कंट्रोल द एक्टिविटीज़ ऑफ दैट सबऑर्डिनेट, राइट। सो दीज आर द 4 एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, जिसमें हमने पढ़ा कि मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो देखे कि जो उनको काम असाइन किया है सबऑर्डिनेट्स को, वेदर दे आर डूइंग इट अकॉर्डिंगली और नॉट। अच्छा कर रहे हैं तो उन्हें मोटिवेट करना, फिनेंशियल या नॉन फिनेंशियल रिवॉर्ड देना, ठीक है। अच्छा कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, हम मोटिवेट करते हुए उन्हें गाइड करना और अच्छे काम करने के लिए इन्फ्लुएंस करना, प्रेरित करना, ठीक है। कोऑपरेशन लाना उनके बीच में, दैट इज़ लीडरशिप। साथ ही में इफ़ दे फेसिंग एनी काइंड ऑफ डिफ़िकल्टी, दे वांट टू शेयर अ प्रॉब्लम विद यू, सो यू मस्ट बी देयर in front of them any time. The communication must be a two-way traffic, ठीक है, दोनों के तरफ से बात होनी चाहिए। सो ये मैंने बेसिकली आपको एक शॉर्ट टर्म में बताया है। अब हम पढ़ेंगे अच्छे से एक्सप्लेनेशन ऑफ सुपरविजन, द डेफिनेशन एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन। ओके, सुपरविजन क्या होता है बेटा? इट रेफर्स टू डायरेक्ट एंड इमीडिएट गाइडेंस। सुपरवाइज करना किसी को, लाइक मॉनिटर को आई असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट नाउ यू नीड टू सुपरवाइज द क्लास। आपको देखना है कोई बच्चा सीट पर खड़ा तो नहीं है, सम चिल्ड्रन आर मेकिंग नॉइज, लाइक इफ सम वन आर नॉट इन प्रॉपर ड्रेस। तो if I assign this kind of responsibility to a child that you are supposed to look after all these things, that means he need to supervise the things, right? Immediate guidance or control of subordinates in the performance of their task. Important part of directing, you can say that it is an important function of management और manager के लिए। इसमें अगर हम supervision की बात करते हैं, so it is a process of guiding, instructing, monitoring किसे? subordinates को, so that they perform their jobs according with the plan and instruction जो उन्हें समझाए गए हैं।
फिर से मैं वही एग्जांपल दूंगी कि क्लास में मैं आपको कहकर चली जाऊं कि आप ये चैप्टर, ये पेज खुद से रीड करिए, मेरे जाते ही आप सब लोग बेफिक्रे हो जाएंगे और आपको लगेगा कि मैम इज़ नॉट गोइंग टू कम वेरी सून, नाउ वी कैन डू एनीथिंग, वी you'll get involve yourself in gossiping, in fighting, in having lunch or whatsoever. ठीक है, बट इफ़ आई वुड बी देयर, मैं हर 5-5 मिनट में आई कीप एन आई ऑन यू, तो आपको पता लगेगा कि येस मैम इज़ देयर टू सुपरवाइज अस एनी ऑफ द टाइम शी एंटर्ड इन टू द क्लासरूम, और फिर विल गेट द पनिशमेंट. Or if we are performing nicely as per the plans and instruction, we will be rewarded. That is supervision. It involves overseeing and checking the work while it is under process. ठीक है, काम जब अंडर प्रोसेस होता है उस टाइम पर सुपरविजन होता है. Supervision is considered with the achieving of desired result by the means of intelligent utilization of human talent and physical resources. आप में से कई बच्चों के पास अलग टैलेंट होगा, कोई किसी चीज़ में, कोई किसी चीज़ में, तो सुपरविज़न करके हम किसी के टैलेंट को निकाल सकते हैं, ह्यूमन टैलेंट को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, फिज़िकल रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं अच्छी तरीके से. और अगर हम लेट इट बी कर देते हैं तो कोई भी इसका मिसयूज़ कर सकता है, पैशनेट होकर काम नहीं करेगा, राइट. सो the word supervision comes from two words, super and vision. Super means over and above, vision the art of seeing objects. काम से ऊपर जाकर the art of seeing objects, what is going on, vision. So supervision is observing the subordinate to work to ensure they work according to the given plan and instruction and help them in solving their work problem. अब जो सुपरवाइज़र होता है हमारा, उसकी क्या पोजीशन होती है, ये देखो, देयर इज़ अ हायरार्की. टॉप मैनेजमेंट में हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव हो गए, CEO ऑफ द कंपनी, चीफ एग्जीक्यूटिव. मिडिल मैनेजमेंट में डिपार्टमेंट का हेड हो गया, लेट्स सपोज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का प्रोडक्शन मैनेजर हो गए. फर्स्ट लाइन और सुपरवाइजरी मैनेजर में सुपरवाइजर्स आ गए. देन ऑपरेटिव वर्कफोर्स, आपने ये 3 तो बेटा पहले पढ़े हैं, टॉप, मिडिल और ऑपरेटिव. ऑपरेटिव से पहले ऑपरेटिव के हेड भी आ गए यहाँ पर, जिन्हें कि हम कहते हैं फर्स्ट लाइन और सुपरवाइजरी मैनेजमेंट, जिनमें हमारे सुपरवाइजर्स आते हैं. अब इस चीज़ को समझो, अगर हम किसी भी कंपनी में बात करते हैं, लेट्स सपोज जनरल मैनेजर हैं, फिर जनरल मैनेजर के नीचे आ गए हमारे सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स. ठीक है, ये टॉप हो गए, ये हमारे मिडल हो गए. इसके बाद आपने पढ़ा था लेबर 3rd नंबर पे, जो कि हमारे ऑपरेटिव जो काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो भी आपका काम करते हैं. इनके ऊपर देखो, मैनेजर डायरेक्ट इनसे कई बार बात नहीं करते हैं, तो इनके ऊपर भी होते हैं, और वो कौन होते हैं, सुपरवाइज़र्स. ठीक है, सुपरवाइज़र्स अंडर लेबर. मान लो 30 लेबर है, तो 30 लेबर के ऊपर एक सुपरवाइज़र हो गया. और ये इनको किस तरह से हम डिफ़ाइन करेंगे, फर्स्ट लाइन और सुपरवाइजरी मैनेजमेंट. ठीक है. सो अ सुपरवाइजर, हु इज़ अ सुपरवाइजर, ही इज़ अ पर्सन हु इज़ प्राइमरली इन चार्ज ऑफ अ सेक्शन एंड इट्स एम्प्लॉयज़. जैसे अब मैंने आपको बताया 30 पीपल आर देयर टू मैन्युफैक्चर समथिंग, उनका इंचार्ज एक सुपरवाइजर होगा. ठीक है. ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन. Quantity, if target is 200 TV manufacture, 500 refrigerator, so he is the only responsible person to look after the quantity as well as quality of production. उसके लिए वो supervise करेगा the people who are working under him for the efficient performance of the equipment, for the employees under his charge and their efficiency, training and morale. Right? ही इशूज़ ऑर्डर, वो ऑर्डर इशू करेगा, इंस्ट्रक्शन देगा वर्कर्स को, और उनकी एक्टिविटीज़ को डायरेक्ट करेगा, और रिपोर्ट करेगा किसे, रिपोर्ट करेगा प्रोडक्शन मैनेजर को. सेल्स का यहाँ पर काम नहीं है अभी, प्रोडक्शन मैनेजर को. सुपरवाइज़र, जिनके अंडर 30 पीपल आर वर्किंग, जो कि प्रोडक्शन में काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में. सुपरवाइज़र इन्हें डायरेक्ट करेगा, गाइड करेगा, मोटिवेट करेगा, सुपरवाइज़ करेगा. प्रॉब्लम होगी तो दे कम टू द सुपरवाइज़र, नॉट टू द डिपार्टमेंटल हेड.
और सुपरवाइज़र पूरे मंथ की रिपोर्ट, क्वार्टरली रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट देगा प्रोडक्शन मैनेजर को, डिपार्टमेंट हेड को, जो कि हमारे मिडल मैनेजमेंट में आते हैं. ओके, आई हैव ऑलरेडी शोन दिस हायरार्की टू ऑल ऑफ यू. Okay, now comes the functions of supervision. What are the functions of supervision? See, it is an important element of directing, supervise करना. तो इसके क्या functions होंगे बेटा? पहला, improving communication. जो सुपरवाइज़र होता है वो सबसे ज़्यादा कांटेक्ट में आता है सबऑर्डिनेट्स के. सबऑर्डिनेट्स ये 30 पीपल हैं, इन्हें कहते हैं सबऑर्डिनेट्स. सुपरवाइज़र सबसे ज़्यादा कांटेक्ट में रहता है सबऑर्डिनेट्स के. तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन इनकी सुपरवाइज़र के साथ रहती है. ये लीडरशिप प्रोवाइड करता है वर्कर्स को अपने डिपार्टमेंट के, और एक्ट करता है एज अ गाइड, एज अ फिलोसोफर एंड एज अ फ्रेंड टू द वर्कर्स. सबऑर्डिनेट्स को, इन 30 सबऑर्डिनेट्स को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो ही एक्ट एज अ गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसोफर टू दीज वर्कर्स. ओके, because they are directly in contact with the supervisor, which leads to effective communication. So improve communication होती है supervision से. Link between management and worker. आप सुपरवाइज़र इसमें क्या करता है? सुपरवाइज़र का रोल होता है वो मंथली रिपोर्ट प्रिपेयर करके वो मैनेजर को सबमिट करता है. ही एक्सप्लेन मैनेजमेंट पॉलिसीज़ टू द वर्कर. अगर ऊपर से कोई मैनेजमेंट पॉलिसीज़ आई हैं तो वो वर्कर को समझाता है. ही हैज़ अ क्लोज कॉन्टैक्ट विद द वर्कर्स, और वो उनसे उनकी प्रॉब्लम भी समझता है. और वो प्रॉब्लम्स अगर उसे लगता है कि उसमें कुछ करने की ज़रूरत है तो उस प्रॉब्लम को वो टॉप मैनेजमेंट तक भी पहुंचाता है फॉर गेटिंग द नीडफुल डन एट द अर्लीस्ट. इफ़ दीज सबऑर्डिनेट आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम तो सुपरवाइज़र टेक दिस प्रॉब्लम टू द हेड, departmental head, and departmental head take this problem to the top level of management for getting the needful done at the earliest. इसमें जो अच्छा हो सकता है वो कराने के लिए, just for the sake of these people. So supervision actually act as a link between the management and the workers. Next is maintaining group unity. Supervisor tend to achieve good human relation in his unit. क्योंकि वो मिक्सअप हो जाता है वर्कर के साथ, उनके जॉय और सॉरोस को शेयर करता है, वो सेटल कराता है कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अगर वर्कर्स में हो जाती है ग्रुप यूनिटी के टाइम पे. सी इफ दे ऑल टुगेदर विल नॉट परफॉर्म एनी फंक्शन, तो कोऑपरेशन नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो कोई भी काम नहीं होगा. इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सुपरवाइज़र टू मेंटेन द ग्रुप यूनिटी. ही एक्चुअली मिक्सेस अप विद द वर्कर्स और उनके जॉयज़ और सॉरोज़ को शेयर करता है, जिससे यूनिटी आती है अमंगस्ट देम. नेक्स्ट इज़ मोटिवेशन फॉर बेटर परफॉर्मेंस. सुपरवाइज़र इंश्योर करता है जो टारगेट दिया हुआ है उस टारगेट के अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा, वो उसके लिए मोटिवेट करता है रिवॉर्ड देकर, फिनेंशियल या नॉन फिनेंशियल. ठीक है, वो इंस्पायर करता है उन्हें फॉर हायर क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी. अच्छी क्वालिटी और गुड क्वांटिटी प्रोवाइड करने के लिए वो उन्हें मोटिवेट करता है, जिसके बदले में उन्हें रिवॉर्ड देता है, फिनेंशियल और नॉन फिनेंशियल. दो ये टॉप मैनेजमेंट का फैसला होता है, बट ये कन्वे करता है सुपरवाइज़र टू द सबऑर्डिनेट्स, सो दैट दे वर्क ऑल टुगेदर फॉर द हायर क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी. नेक्स्ट इज ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज़. सुपरवाइज़र इनिशिएटिव लेता है अगर ऑन द जॉब ट्रेनिंग देनी होती है एम्प्लॉयज़ को. कोई नया एम्प्लॉय आया है, पुराने एम्प्लॉयज़ नई मशीनरी पे काम कर रहे हैं, तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस सुपरवाइज़र टू टेक दिस इनिशिएटिव सो दैट इट विल एनहेंस द नॉलेज एंड स्किल फॉर डूइंग देयर जॉब्स बेटर. वो ऑन द जॉब बाकी लोगों को ट्रेंड करता है. ओके, नेक्स्ट इज बिल्डिंग हाई मोरल. अ गुड सुपरवाइज़र कैन बिल्ड हाई मोरल ऑफ ग्रुप मेम्बर्स. वो ऐसा करता है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन से एम्प्लॉयज़ के साथ, और उन्हें इफ़ेक्टिव लीडरशिप प्रोवाइड करता है, जिससे एम्प्लॉयज़ को लगता है कि समवन इज़ देयर टू लिसन देम. उनका मॉरल हाई होता है. इफ़ दे आर परफॉर्मिंग गुड दे विल बी रिवॉर्डेड विद द इंसेंटिव्स, फिनेंशियल एंड नॉन फिनेंशियल. सो टू बिल्ड द मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज़ इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ सुपरवाइज़र.
नेक्स्ट इज कंट्रोल ऑफ परफॉर्मेंस. सुपरवाइजर कंट्रोल करता है परफॉर्मेंस वर्कर की कंपेयर करके विद द स्टैंडर्ड. सी 200 पेन का टारगेट है लेकिन बने कितने 195. तो 5 क्यों कम रह गए. अब ये जो 5 कम रह गए हैं ये है कंट्रोल ऑफ परफॉर्मेंस. He take necessary action to ensure that goods are produced as per the predetermined standard. Predetermined standard क्या है 200 पेन होने चाहिए थे बने 195. इसका मतलब या तो टी ब्रेक ज़्यादा टाइम ले गया, लंच ब्रेक ज़्यादा टाइम ले गया, जो 5 हमारे पेन नहीं बने. प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड था 200 पेन का, बने कितने 195. तो वो ही ऑल्सो प्रोवाइड फीडबैक टू दी सबऑर्डिनेट अबाउट देयर परफॉर्मेंस एंड गिव देम काउंसलिंग. वो फीडबैक भी देता है कि भाई आप लोगों ने शायद कहीं टाइम वेस्ट किया होगा और उनकी प्रॉपर काउंसलिंग करता है सो दैट दे विल इम्प्रूव. उन्हें पता होना चाहिए कि 200 पेन तो उन्हें बनाने हैं, इससे ऊपर वो अच्छा काम करते हैं तो दे विल गेट इंसेंटिव. राइट. नेक्स्ट इज ग्रीवियंस हैंडलिंग. अगर ग्रीवियंस मतलब शिकायतें डायरेक्ट टच में होते हैं वर्कर्स के तो वो जल्दी से हैंडल कर लेता है. इंस्टीड वो मैनेजर के पास जाएंगे या टॉप लेवल के पास जाएंगे तो वो सब कुछ समझेंगे. बट सुपरवाइज़र उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है. जब भी कोई शिकायत आती है उसे सुनता है, अच्छे से व्यू पॉइंट देखता है एंड ही ट्राइज टू रिमूव द कॉज. कारण जो होता है ग्रीवेंस का, शिकायत का, उसको रिमूव करने की कोशिश करता है. इफ़ इन केस ही कांट रिड्रेस द ग्रीवेंस वो फिर उसे अपर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के पास लेके जाता है, दैट इज़ डिपार्टमेंटल हेड के पास. अगर कोई मेजर प्रॉब्लम होती है दे विल हेल्प हिम टू सॉर्ट इट आउट. So dear students, today we are done with this element of directing. Tomorrow we'll discuss the second element, that is motivation. Have a good learning. Thank you.